Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So this is the second video of Indian Armed Forces and Indian Artillery और आर्म्स इन इंडियन आर्टिलरी. एंड हमने फर्स्ट वीडियो में मोटी मोटी चीज़ें इंडियन आर्मी के बारे में देख ली थी. नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड. So we know that Army, Navy and Air Force, these are tri-services in Indian Armed Forces. So first is Indian Army. So Indian Army is second largest standing army with this much of active troops and reserve troops. And same way, Indian Navy is the seventh most powerful navy in the world after US, Russia, China, Japan, UK, France. Fine, with 67,252 active personnel with 75,000 as reserves. If we talk about Air Force is ranked third in the world according to the report of WDMMA, World Directory of Modern Military Aircraft. So basically हमारी आर्मी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, नेवी है सेवंथ मोस्ट पावरफुल एंड इंडियन एयरफोर्स है थर्ड. बट वी नीड टू डू अ लॉट मोर बिकॉज अगर हम यूएस और जो इंडिया से या चाइना के साथ भी कंपेयर करें इंडियन नेवी को तो काफ़ी हम काफ़ी लैक करते हैं. तो अब आर्मी का मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा. इफ यू टॉक अबाउट नेवी देन शाम नो वरुणः, may the lord of water be auspicious unto us. And if you talk about air force, nabhah sparsam diptam. So ये संस्कृत में है ये मोटो एंड इसका मतलब क्या होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी. एंड इट इज टेकन फ्रॉम भगवत गीता व्हेन दिस इज समथिंग विच कृष्णा वाज सेइंग टू अर्जुन इन द फ्रॉम द 11th chapter ऑफ भगवत गीता इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And Army Day is celebrated on 15th of January, then Navy on 4th of December, and then Air Force Day on 8th of October. It's fine. So apart from tri-services, there are two joint commands whose head can belong to any of the three services. And these two commands are Andaman and Nicobar Command and Strategic Force Command. तो ये इन ट्राई सर्विसेज के अलावा ये दो कमांड है और इनके हेड किसी भी सर्विस से बिलोंग कर सकते हैं. फाइन. नाउ दिस इज़ बेसिकली कि रैंक जो होती है ऑफिसर्स की. सो रैंक वाइज ये है, ये टेबल है, यू कैन सी दिस टेबल. सो इन नेवी इट्स फर्स्ट हाईएस्ट रैंक 5 स्टार एडमिरल ऑफ फ्लीट. आर्मी फील्ड मार्शल सैम मानेकशा वी हैव हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. एंड एयरफोर्स में मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स. देन नेवी में आफ्टर एडमिरल ऑफ फ्लीट इट्स एडमायरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल. These are 4 star. These all are 4 star officers. Then vice admiral, lieutenant general, air marshal. These all are 3 star. For becoming chief of defense staff, one should be lieutenant general, at least lieutenant general. He should be a 3 star officer or above that, retired or serving. Fine. So after vice, then real admiral, lieutenant general के बाद में major general, air marshal के बाद में air vice marshal. These are 2 star. And this is 1 star. Commodore, brigadier, air commodore, captain, colonel, group captain, commander, lieutenant colonel, wing commander, lieutenant commander, major, squadron leader, lieutenant captain, flight lieutenant, sub lieutenant, lieutenant flying officer. So ये lieutenant को lieutenant भी बोल सकते हैं. Fine, it depends upon you. आप इसको कैसे pronounce करते हैं. तो you can pause the video and you can take the screenshot or you can remember all these things. So सबसे पहले आर्मी में फील्ड मार्शल, देन जनरल के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल और लिeutenant जनरल के बाद में मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर, कोलोनल, लिeutenant कोलोनल, मेजर, कैप्टन, लिeutenant, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रोन लीडर, फ्लाइट लिeutenant, फ्लाइंग ऑफिसर. फाइन. उसी तरीके से एडमिरल, वाइस एडमिरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लिeutenant, सब लिeutenant. फाइन. अब हम देखेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो में जिस तरीके से देखा था कि देयर आर कमांड्स बेसिकली कि इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स है. द सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर इट इज़ इन हरियाणा, सेंट्रल कमांड इट इज़ इन लखनऊ यूपी, नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर, एंड दिस इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, दिस इज इन शिमला, दिस इज साउथ वेस्टर्न कमांड इट इज़ इन जयपुर. फाइन. दिस उधमपुर इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज इन हरियाणा, एंड लखनऊ इज इन यूपी, पुणे इज इन महाराष्ट्र, and Kolkata is in West Bengal, and Jaipur is in Rajasthan, Shimla is in Himachal Pradesh. Fine. So I have told you that there are 3 commands of Navy: Western, Eastern and Southern. Western headquartered in Mumbai, Eastern headquartered in Visakhapatnam,
and southern headquartered in Kochi. Now, moving ahead, I told you that Air Force में 5 operational and 2 functional, ठीक है, तो 5 ऑपरेशनल 2 फंक्शनल कमांड्स है. अब ये मैंने डायरेक्शंस के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करा है कि वेस्टर्न दिल्ली, ईस्टर्न शिलोंग, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, सदर्न त्रिवेंद्रपुरम एंड सेंट्रल इलाहाबाद. एंड उसी तरीके से जो 2 फंक्शनल कमांड है वो है ट्रेनिंग कमांड दैट इज इन बेंगलुरु एंड देन मेंटेनेंस कमांड दैट इज इन नागपुर. फाइन. सो मूविंग अहेड, अगर हम इंडिया के मिलिट्री बेसिस की बात करें, सो बेसिकली मिलिट्री बेस होते क्या है, तो मिलिट्री बेस के बारे में अगर हम पहले पढ़ें तो मिलिट्री बेसिस क्या होती है, फैसिलिटीज. मिलिट्री बेसिस आर फैसिलिटीज दैट आर डायरेक्टली पोजेस्ड and operated by or for the military to shelter military equipment and personnel and facilitate training and operations. ठीक है, तो मिलिट्री बेस क्या होता है, या तो उनको वो डायरेक्टली पोजेस करते हैं या हम उनको ऑपरेट करते हैं या फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन के लिए जिनका यूज़ कर सके, तो बेसिकली वो मिलिट्री बेस होते हैं. फाइन. अब सबसे पहला जो मिलिट्री बेस था हमारा आउटसाइड इंडियन टेरिटरी वॉज ताजिकिस्तान फरकोर एयर बेस. फाइन. सो इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद ताजिक एयरफोर्स. इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री बेस ओवरसीज. इसमें क्या है कि जो चाबहार पोर्ट जो कि हम ईरान में डेवलप कर सकते हैं, चाबहार पोर्ट इन ईरान फैसिलिटेट्स access to this Farkor air base in Tajikistan via Afghanistan. Fine. So that way also Chabahar port is crucial for India. Now Bhutan. So there is Indian military training team. Fine. So this is located in Ha Zone in western Bhutan, and this Indian military training team, it also provide training to Royal Bhutan Army. And now Madagascar. So India's first foreign listening post was set up in 2007 in Madagascar to track shipping movement in Indian Ocean. Listening post क्या होता है, when we talk, so कोई भी अगर इंडियन ओशन में कोई शिप है तो अगर उसमें कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, सो थ्रू दिस वी कैन उनका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं कि क्या बात वो कर रहे हैं. ठीक है. सो मॉरिशियस में भी है मिलिट्री बेस ऑन नॉर्थ एगलेगा आइलैंड. नाउ सेशल्स में नेवल बेस एट अजम्पशन आइलैंड टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी. फाइन. सो एज यू नो कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में अपना जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ा रहा है. इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज़ है, वेदर इट इज़ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, सभी कंट्रीज़ के साथ में जो है चाइना इंगेजमेंट बढ़ा रहा है टू काउंटर इंडिया. सो कंसिडरिंग दैट ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया भी इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ है उनके साथ में इंगेजमेंट बढ़ाए और अपने मिलिट्री बेसिस सेटअप करे, सो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास ऐसे मिलिट्री बेसिस हो फॉर रीफ्यूलिंग एंड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ आवर एयरक्राफ्ट और शिप्स और आवर मिलिट्री इक्विपमेंट्स. So Seychelles में naval base at Assumption Island to counter string of pearls strategy. Then there is Oman, listening post at Ras Al Had and berthing right at Muscat Naval Base and an establishment at Dukm for Indian Air Force and Indian Navy. Then on 7th number ईरान में चाबहार पोर्ट है ही. Then सिंगापुर में चंगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर सर्व एज एन इंडियन नेवल बेस इन सिंगापुर. सो स्ट्रेट ऑफ जो मेलाका है वहाँ से अराउंड 70% ऑफ चाइना ट्रेड इज डन वाया द स्ट्रेट ऑफ मेलाका. तो इस हिसाब से जो स्ट्रेट ऑफ मेलाका है वो कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है चाइना के लिए, वो बिकॉज अगर वो वहाँ से स्ट्रेट ऑफ मेलाका से उसको एक्सेस नहीं मिलेगा तो फिर उसको घूम के आना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड से होते हुए इंडियन ओशन में आना पड़ेगा. फाइन. सो चंगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर. Now श्रीलंका का हम्बनटोटा एयर बेस. Fine. So yes, in this video we'll learn about military bases, our commands of the tri services, where उनके headquarters कहाँ पे है, रैंक क्या क्या होती है आर्मी की, ये सब की हमने देखा इन सब के बारे में. एंड आने वाली वीडियोस में हम एक एक इंडिविजुअल कंट्रीज पे जाएंगे और सब मिसाइल्स के बारे में देखेंगे. सो इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड yes, take care, bye bye, and see you soon in the next video.